हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज। हमने 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमने 40 क्वेश्चंस लास्ट टाइम पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। नाउ दिस इज द पार्ट 2 और हम बाकी के 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाकर यहाँ पे क्लिक करके उसको वीडियो को वॉच कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, अगर पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 पहले देख लेना, पार्ट 1 बाद में देख लेना। इट्स ऑल अप टू यू। दिस इज द PYQ ऑफ ऑफ द ईयर 2024। ठीक है, तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। अगेन हम लोग हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाली चीज़ें इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। Now this is the passage again. We are going to read it. What you all going to do is pause the video, read the passage and then start doing the questions with me. ठीक है, तो सबसे पहले conventional classrooms by emphasizing fixed duration over learning effectiveness resigns themselves to variable outcomes. The tyranny of the classroom is that every learner is subjected to the same set of lectures in the same way for the same duration. In the end, a few learners shine, but some survive, and the rest are left behind. After the fixed duration, the classroom model moves on, with not a thought spared for those left behind. This is how we end up with 10% unemployability in our graduates after a decade and a half of a formal education. Repeating the same ineffectual script in the realm of skill education will not produce different results. Okay, now I hope समझ आ गया होगा। पैसेज इजी था, लैंग्वेज इजी थी। Now we have to tell the inference of the passage. In conventional classroom learnings, the central goal is duration of learning rather than the attainment of competency. Conventional classrooms encourage one size fits all approach and stamps out all differentiation. This is the main passage, the meaning of the passage that we were talking about. और जो पहला वाला है उसमें हमने ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग पे इतना फोकस नहीं करा है। वो तो जितने टाइम में ग्रेजुएशन होगी होगी, लेकिन कंपिटेंसी के बारे में कोई बात नहीं करी। कंपीट थोड़ी करवा रहे हैं हम, है ना। तो ओनली 2 वी विल गो विद। नाउ बेस्ड ऑन द अबव पैसेज assumptions बतानी है। As a large number of workers in our country are employed in unorganized sector, India doesn't need to change its present conventional classroom systems for education. ये तो assumption ही बेकार है कि मतलब इंडिया को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, अपने कन्वेंशनल चेंज करने पड़ेंगे। Even with its present conventional classroom systems of education, India produces sufficient number of skilled workers. नहीं, ये भी गलत है। तो we are going with D part, neither 1 nor 2. Now passage number 2. When a child reaches adolescence, there is an apt to be a conflict between the parents and the child, since the latter considers himself to be by now quite capable of managing his own affairs, while the former are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love of power. Parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province. The options they express, however, are so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way in secret. Okay, now we have to tell the assumptions. The adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. True. The adolescent of modern times does not have much respect for parents. Respect की तो बात ही नहीं करी गई, only one we are talking about. अब central idea of the above passage क्या था? Parents in general may not be of much help when children are on their way to becoming adults. When children reach adolescence, involvement of parent is unnecessary. This is extreme word, हटा दो। Modern day nuclear families are not capable of bringing, देखो not capable again extreme, जरूरी नहीं है सारी families ऐसी होती हैं। In modern societies, adolescents tend to be stubborn, disobedient and careless. ये भी बहुत ज़्यादा extreme statement है। यहाँ पे may not लिखा हुआ है तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है। Now question number 45. What is the number of fives used in numbering a 260 page book?
कितने नंबर ऑफ फाइव्स आएंगे अगर आप 260 तक काउंट कर रहे हो? तो पहला 5 आएगा, 15 में एक 5 आएगा, 25, 35, 45, ठीक है। यहाँ तक तो आपके 1 2 3 4 5 5 तो यहीं तक हो गए। फिर 50 से लेकर 59 तक कितने आएंगे? 10 आ जाएंगे, ठीक है। 55 में 2 आते हैं, ठीक है। फिर आप काउंट करो अगेन, 65, 75, 85, 95, 4 और हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 50 से 59, 50 भी काउंट कर रहा है, आई थिंक 11 हो जाएंगे, है ना। 11 एंड दिस 9, तो 20 हो रहे हैं 1 से 100 के बीच में, ठीक है। 20 टाइम्स आ रहा है। अब 100 से 200 तक जाओगे तो अगेन 20 आ जाएंगे, है ना, प्लस 20। और फिर 200 से 260 तक जाना है हमें, ठीक है। 200 से 260 तक, तो 200 से अगर हम जाएं 260 तक, तो उसके बीच में हमें पड़ रहे हैं 5 एंड 11, दैट इज 16। तो 40 प्लस 16, 56 हो गए, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस? अब देखो पहले फिर सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या कह रहा है। पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 3 2, फिर 1 4 3 2, फिर 1 5 4 3 2। ओके, तो 1 पहले आ रहा है, उसके बाद चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आ रहे हैं नंबर्स। तो 28 कब तक जाएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 के बाद 6 आएगा, दैट विल गिव यू 21। 21 में आप 7 प्लस करोगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मतलब यहाँ पे 7 तक जा रही है टर्म्स। तो 1 जो है वो 7 बार ऐड करना है, मतलब 7, प्लस 2 जो है वो 6 बार ऐड करना है, क्योंकि पहली बारी में 2 नहीं था, है ना। तो ये हो गया 2 6 12। 3 को हमें करना है 5 बार, 3 5 15। 4 को करना है हमें 4 बार, मतलब 16। 5 को करना है हमें 3 बार, अगेन 15। 6 को करना है 2 बार, अगेन 12। और 7 को करना है 1 बार, मतलब 7। अब इन सब को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 15 और 15 30 हो गया, ठीक है। 30 और 24 54 हो गया। 54 प्लस 16 will give you 70, 70 plus 14 will give you 84. B part will be the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 47th, a person buys 3 articles P, Q and R for ₹3,330 रुपीज़। अगर P की कॉस्ट 25% ज़्यादा है R से, तो P की कॉस्ट जो है R से 25% ज़्यादा है। R की कॉस्ट अगर 4 है तो P की कॉस्ट 5 रुपये हो गई, ठीक है। एंड R को कॉस्ट 20% मोर देन Q, और अगर Q की वैल्यू हमारी 5 है तो R की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। 20% ज़्यादा है। अब हमें इस रेशियो को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यू विल गेट पी क्यू आर का, सॉरी, पी आर एंड क्यू का रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 15, 4 3 12 एंड 5 2 10, ठीक है। ये रेशियो बनेगा। तो हमें बताना है कि P जो है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P। अब इन सबको आप ऐड करो, यू विल गेट 37, ठीक है। और टोटल हमारे पास रुपए कितने थे? 3,330 रुपीज़। इसको आप 37 से काटो। व्हेन यू विल डिवाइड दिस नंबर, तो व्हाट यू विल गेट हियर, $3,330 डिवाइडेड बाय 37, यू विल गेट 90। तो यहाँ से आ गया हमें 90।
अब हमें निकालनी है p की वैल्यू, मतलब इसको करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई। 15 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे what is the cost of p? Okay, a person buys an article p, q and r for 3,330 rupees। अगर p की कॉस्ट 25% ज़्यादा है r से, 25 का मतलब होता है 1/4, 4 और वो 5, ठीक है। और r की कॉस्ट 20% ज़्यादा है q से, तो q की कॉस्ट अगर 5 है तो r की कॉस्ट 6 हो जाएगी। दैट्स राइट, ओके। और हमने इसको इक्वल कर दिया। ओके, रेशियो तो यही बनना चाहिए, 90 भी आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि p 15 का है ना। अभी हमने 1 की वैल्यू निकाली है, तो इसको अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 विल गिव यू इज इट कमिंग राइट, 950 होता है ये तो, है ना। 950 तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 90 को, तो 108 होता है, 1080। ओहो, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग 9 विद 5। 15 इंटू 9 करोगे अगर आप, ओ गॉड, 1350 ऑप्शन आएगा, डी पार्ट आएगा। फालतू टाइम वेस्ट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स ए बी एंड सी डी इज अ 3 डिजिट नंबर 1 सी ई, मतलब ए और बी को, ए बी को अगर हम सी डी के साथ ऐड कर रहे हैं, है ना, ऐड कर रहे हैं, तो हमें बन रहा है 1 सी ई, ये बन रहा है, ठीक है। और ये जो सारे नंबर्स हैं ए बी सी डी, ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, अलग अलग डिजिट्स हैं, और ऑब्वियसली 1 नहीं है इनमें से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू हो सकती है? तो आई थिंक इट शुड बी एन इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो वैल्यू दे सकते हैं ये। लेट्स से 2 and 7, तो हमें ऐड करके मिला 9, और यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली कैरी करना पड़ेगा कुछ, तो लेट्स टेक इट 3 है, तो हमारा यहाँ 10 आ रहा है। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 0 नहीं हो सकता? नॉन ज़ीरो तो नहीं लिखा है ना, तो 10 ले लिया, 1 कैरी हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का सम भी 10 होना चाहिए, तो 10 नहीं होना चाहिए, वो नंबर ऐड करके कुछ तो ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि ये ऐसा कुछ आए। ओके, इफ आई एम टेकिंग सी एज 4, तो हमें 14 चाहिए बेसिकली। ओके, सी को अगर मैंने 4 ले लिया, ए को ले लिया मैंने 9, ठीक है। तो 9 + 1 10 + 4 14, तो 1 4 आ गया। एक ये पॉसिबिलिटी है। ए की वैल्यू तो 9 ही रखनी पड़ेगी हिसाब से, मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू कुछ और रखेंगे, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो 10 में जो भी आप सी ऐड करोगे वो ही बनेगा ना, जैसे 10 + 5 15, तो यहाँ पे वही आएगा नंबर लास्ट में। तो ए की वैल्यू 9 होनी चाहिए। ए की वैल्यू तो हम डेफिनेटली श्योर होके बोल सकते हैं। चलिए 49th क्वेश्चन। 3 numbers x, y, z are selected from a set of first 7 natural numbers such that x is greater than 2y and 2y is greater than 3z. How many such distinct triplets are possible? फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स से हमें ऐसा लेना है, ठीक है। तो अगर मैंने x को ले लिया लेट्स से 3, y को ले लिया मैंने 2, इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 2, एंड नहीं 2 तो नहीं हो सकता है, इसको और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। लेट्स टेक इट 5, और इसको मैंने 2 ले लिया है, और z को हम ले लेंगे 1, ठीक है।
तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 5 इज ग्रेटर देन 4 दैट इज ग्रेटर देन 3. एक ट्रिपलेट बन गया. ओके, इफ आई एम टेकिंग another triplet kind of a way, जहाँ पे मैं ले रही हूँ x को और बड़ा नंबर 7 तक ले जा सकते हैं, तो x को ले लिया 7 और y को हम 3 ले सकते हैं. 3 2 6 हो जाएगा, वो फिर भी छोटा रहेगा. y को मैंने ले लिया 6, सॉरी नॉट 6, 3. y को ले लिया 3 तो वो 6 हो जाएगा और 6 से छोटा z को हमें 1 ही लेना पड़ेगा. तो 7 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 3. इज दैट ओके? ओके, और दो ट्रिपलेट्स आ गए अभी तक हमारे पास. और अगर हम 7 और 7 2 1 ले सकते हैं, 7 4 3 अगेन, है ना, पॉसिबल. और अगर हम इसको 6 ले लें, 6 3 तो फिर 6 ही हो जाएगा ना. 6 2 और 1 ये ले सकते हैं, तो 6 4 और 3 हो जाएगा, ऐसा है ना. तो 6 2 1 भी हो सकता है. तो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 ट्रिपलेट्स हमें मिल रहे हैं. चलिए नेक्स्ट question number 50. What is the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples is equal to twice the total of, देखो 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples की जो cost है वो twice है total के of 1 orange, 2 mangoes and 5 apples के. अब हमें इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज and 8 apples. The total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the total cost of 1 apple. Now let's solve it. 4 orange, 6 mangoes and 8 apples is equal to 2 orange, 4 mangoes plus 10 apples. अब इसको यहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2 oranges plus 2 mangoes is equal to 2 apples. तो orange plus mango is equal to apple. ये आ गया. द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 1 मैंगो इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल. ये तो ठीक है, 2 वाला तो ठीक है. द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस एंड 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल्स. ओह गॉड, Three oranges, 5 mangoes and 9 apples is equal to the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples. Oh god, I don't think this is going to be true, so we are going with the B part B or 2 only. ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे. पैसेज पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा पैसेज है, जल्दी से हो जाएगा. When an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mixed into underground basalt rocks, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks. Calcium and magnesium are formed limestones. Basically, carbon dioxide is converted into stone, exclaimed the scientist. Now, what is happening here is कि अगर आप पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किसी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके किसी बेसॉल्टिक रॉक्स के अंदर डाल दो, तो वो उसके साथ एसिडिक मिक्सचर जो है उसका वो डिसॉल्व हो जाता है और कैल्शियम मैग्नीशियम डिसॉल्व होके लाइमस्टोन बना देते हैं. तो मतलब अगर आप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डाल रहे हो किसी बेसॉल्ट सॉल्ट के अंदर, तो वो भी अंदर जाके एक स्टोन बना देता है जो कि लाइमस्टोन होता है. ठीक है. Which one of the following statements best reflect the most logical, rational and practical suggestions? It is cheap and practical methods to produce limestone. This can be used as one of the methods of carbon sequestration. Basalt salt can be made a good source of calcium magnesium minerals by this method. Good rock dissolving acid can be produced. No. See, what is happening here is मोस्ट लॉजिकल एंड ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करो और उससे लाइमस्टोन्स बना दो. ठीक है. चलिए पैसेज नंबर 2. जियोग्राफर्स एनालाइज्ड 175 सैटेलाइट इमेजेस ऑफ ओशंस व्हिच इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस सरफेस
and found that giant icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in the Southern Ocean. The researchers discovered that melting water from giant icebergs, which contain iron and other nutrients, supports unexpectedly high levels of phytoplankton's growth. Okay, now tell me what is the following assumptions. Now इन्होंने बोला है ऐसा कि मेल्टिंग वाटर जो है जाइंट आइसबर्ग्स से, उसके अंदर आयरन है और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ के लिए मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है. जाइंट आइसबर्ग्स हैव एन बियरिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी and food chains of southern oceans. Melting of giant icebergs can produce climate change effects and impact the world fisheries. ये इम्पैक्ट तो करेगा ऑफ कोर्स, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होंगे तो ऑफ कोर्स इफेक्ट आएगा. पॉजिटिव होता है या नेगेटिव वो देखा जाएगा, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स, तो ऑफ कोर्स इफेक्ट तो होगा ही होगा. और फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ लिखा नहीं था उन्होंने, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा है वो पैसेज से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. नाउ पैसेज नंबर 3, ये भी छोटा सा है. Evolution has endowed caterpillars that feed on corn with a unique ability. They can induce the plant to turn off its defense against the insect predators. जो कैटरपिलर्स जो हैं, अगर वो कॉर्न के ऊपर फीड करें, उसको खाएं, तो उनके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो प्लांट के अंदर इंड्यूस कर सकते हैं कि वो अपना डिफेंस सिस्टम ही खत्म बंद कर दे इंसेक्ट प्रेडेटर्स के लिए. This helps caterpillars to eat more and grow faster. The agent that causes this effect is the caterpillar's physis or frass. The find could throw new light on compound associated with plants' response to pathogens like fungi and bacteria. Most logical and rational practical message बताना है. Farmers can use caterpillars to feed on weeds in their crops, fields and plantations. This finding can help in the development of clinically uses antimicrobial compounds, can help in development of organic, ecological, sustainable pesticides, can be genetically modified to the predators of the other plant pests. See, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मैसेज यहाँ पे ये कन्वे करा जा रहा है. लास्ट में उन्होंने बोला भी था कि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं. हम ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं एसोसिएटेड प्लांट्स रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस लाइक फंजाई और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए. पैथोजेंस से लड़ने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं उस चीज को. ठीक है. तो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बना सकते हैं. ठीक है. माइक्रोब्स ही तो होते हैं फंजाई और वो algae. Okay. Now we have to टेल कि इनमें से जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा. देखो 2 की पावर 27 अगर आप बाहर लो, 32 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32. तो 2 की पावर 5 आ रही है बाहर. ठीक है. तो 2 की पावर 5 और उसकी पावर 5 प्लस 2 की पावर 27. अब इसका मतलब हुआ ये 25 है, तो 2 की पावर 25 मैंने यहाँ ले लिया. अंदर बचा 2 2 4 प्लस 1 5, सॉरी 25 तो हमने पहले ले लिया. 1 प्लस 2 2 4, तो ये 5 आ रहा है. तो 2 की पावर 25 और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मतलब 5 यहाँ से आ गया और 2 एक यहाँ से ले लोगे तो 10 बन जाएगा, तो 10 से चला जाएगा. लेट P एंड Q बी अ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग. जो P है वो छोटा है Q से और उन दोनों का सम जो है वो K है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K दैट डज नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिकली. छोटा नंबर ऐसा कौन सा है? अगर आप 3 लोगे तो ऑफ कोर्स 1 और 2 ही हो सकते हैं. अगर आपने 4 लिया तो हो सकता है 2 और 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है. P जो है वो छोटा है Q से, तो 1 और 3 ही पॉसिबल है इसके लिए. अगर आप 5 लेते हो तो 1 और 4 भी हो सकता है और 2 और 3 भी हो सकता है. तो ओनली 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है. डिस्टिंक्ट भी तो बताने हैं. 5 and 6 कह रही हूँ. 56th क्वेश्चन. अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस. 100 मीटर स्ट्रेट गया है वो पहले, फिर टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर. तो लेफ्ट टर्न करा, बहुत बड़ा हो गया.
ओके लेफ्ट टर्न करा उसने और 100 मीटर और चला वो, ठीक है, एंड वॉक्स अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर। अब ये 300 मीटर नीचे जाएगा लेफ्ट टर्न करके, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, फिर राइट, इसकी मुंडी नीचे हो गई है तो 100 मीटर यहाँ जाएगा ये राइट में, ठीक है, और यहाँ इसका ऑफिस है। ओके, in which direction does he walks initially from his house if his house is exactly in the northeast direction? If his office is exactly in the northeast direction. अब यहाँ पे आ रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के लिए इसे जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम पूरा ऐसे रोटेट करके यहाँ लेके जाएंगे तो ये रोटेट होके पूरा ऐसे जाएगा, तो मतलब वो पहले इधर चला होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे 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 नहीं, ऐसे 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 ऐसे। तो ही इज गोइंग इन द साउथ डायरेक्शन इन द इनिशियल प्लेस। अगर आप इसको पूरे को घुमा के देखोगे ना, आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट हेयर, सिलेक्ट नहीं कर सकते हम इसको, नहीं हो सकता, ये मूव नहीं हो पाएगा, बट इफ यू मूव इट, आई डोंट हैव दैट ऑप्शन राइट नाउ। अगर आप इसे पूरे को घुमाओगे क्लॉकवाइज ना, तो ये पूरा कितना डिग्री घूम रहा है, मोर देन 90 डिग्री, है ना, 90 यहाँ तक आएगा, 90 से और आगे जा रहे हैं हम लोग, सॉरी 180 से भी ज्यादा डिग्री जा रहा है, तो ये भी 180 से ज्यादा डिग्री जाएगा। अभी नॉर्थ जा रहा था तो साउथ जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, 100 मीटर वेस्टवर्ड गया भाई, देन द पर्सन टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, अगेन लेफ्ट लेगा और 100 मीटर फिर से चलेगा। ही देन टेक्स अ 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अगेन ऐसे, तो यहाँ से वो चल रहा है, ये उसका 100 डिग्री हो गया, 100 से और इधर जाएगा तो यहाँ जाके 225 डिग्री आएगा। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, अब वो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। द स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, डज नॉट तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो वी आर गोइंग विद डी पार्ट, नीदर नॉर 1 and 2 आर बोथ फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अगेन क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। What are the values of m and n where m and n are natural numbers? m प्लस n जो है वो बड़ा है m इंटू n से, ठीक है। ये तब पॉसिबल है जब आप 1 को किसी भी नंबर n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी नंबर है वो m होगा, क्योंकि m जो है वो बड़ा है n से, है ना, तो यहाँ पे m होगा। 1 प्लस m विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 इंटू m, ठीक है, क्योंकि ये तो m ही रहेगा और वो m प्लस 1 है, तो m मतलब n की वैल्यू तो 1 हो गई। देन एंड द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24, और ये जो है ये 24 है, तो m की वैल्यू 24 हो गई है और n की वैल्यू 1 आ गई है। और हमें m और n दोनों की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों की वैल्यू के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत थी, एक स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन आंसर करना है आपको। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। साइज दिया हुआ है कि एक साइज दिया हुआ है कि जो फाइल की साइज है, सॉफ्टवेयर का साइज है वो 12 मेगाबाइट्स का है,
ठीक है, 12 MB का है, और एक जो ट्रांसफर रेट है वो 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड है। तो किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स दोनों चीज़ें गिवन है, स्पीड गिवन है, तो दोनों चीज़ें यूज़ करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द क्वेश्चंस। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द पैसेज ऑफ कोर्स। तो अभी हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब हाफ वे थ्रू वी आर डन ऑलरेडी। वी हैव टू डू 20 more questions now. Okay, let's buckle up and let's complete it quickly. Okay, passage पढ़ेंगे फटाफट से. In the robust democracy, reality, howsoever inconvenient it may be, finds its expression both in the speech of political leaders and the other social forms of assertions. The existence of the real has to be transparent both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. The normatively responsible media, through its communication effect, has the responsibility to circulate the content of the reality without distortion. Okay. Now we have to answer the questions. हमें बताना है कि best reflect crux बताना है. ठीक है, तो responsible media should not distort the real in the ideal democracy. Fake news seem inherent in the life of ideal democracy. बहुत extreme statement हो गया. There should not be any kind of restrictions. बहुत extreme statement हो गया. Irresponsible media and political leaders cannot be effectively controlled by in the ideal democracy. Okay. तो क्रक्स इज व्हाट कि इररिस्पॉन्सिबल मीडिया पॉलिटिकल लीडर्स को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं करना चाहिए आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर, और रिस्पॉन्सिबल मीडिया को डिस्टॉर्ट नहीं करना, शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन द आइडियल डेमोक्रेसी. मेरे ख्याल से दोनों एक ही तरीके की बातें कर रहे हैं, बट आई विल मेजरली गो विद द ए पार्ट. ठीक है, चलो passage 2. Nowadays there is a growing trend to use interconnected home devices. As consumers increasingly network their homes, the connected home devices manufacturers and service providers will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data with or without our agreement, turning the home into a corporate storefront. The corporate marketeers will have powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences of the device owner. Which one of the following statement best reflect the message? Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure. Okay, knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade and thus help in overall economic development. Interconnected device gives a lot of comfort in the home users. Interconnected device can be at the security risk. ये बात करी गई है, प्राइवेसी रिस्क हो सकते हैं. ठीक है, with or without our agreement, turning the home into a corporate storefront. वो वहां से नॉलेज गेन कर सकते हैं कि कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है. ठीक है, और फिर उसको यूज कर सकते हैं. प्राइवेसी ब्रीच तो है ही. Okay, now passage number 3, here we go. Green growth involves rethinking growth strategies with regard to the impacts on environmental sustainability and the environmental resources available to poor and vulnerable groups. In rethinking growth, we need to focus on the current reality of a resource constrained world. Resource incentive and in particular energy incentive processes will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies if we are to avoid an economic dead end, or the world in which only a small elite is able to enjoy the affluence in the midst of a sea of poverty. तो क्रक्स क्या कहना चाह रहा है? Environmental sustainability is inimical of our objective achieving high GDP growth. Poverty eradication is not possible without rapid economic growth. Maintaining high environmental standard is now a prerequisite for achieving a steady, sufficient and inclusive growth. With the large population, rampant poverty and limited resources in today's world, environmental degradation cannot be prevented and inequalities are inevitable. ये भी extreme हो गया, ये भी extreme हो गया. ठीक है,
वी आर गोइंग विद द ए पार्ट कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव हाई जीडीपी ग्रोथ भी होनी चाहिए और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64th. What are the unique values of x and y where x and y are distinct natural numbers? ठीक है, x by y जो है ऑड है. हमें ये बोला गया है कि कितनी यूनिक वैल्यूज होती हैं x और y की अगर x और y डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं. देखो सिर्फ इससे बता सकते हैं हम कि x और y क्या क्या हो सकते हैं. डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. 12 होगा तो 1 और 12 हो सकते हैं. ठीक है, इसको इंटरचेंजेबल कर सकते हो आप 2 बार. ठीक है, 2 और 6 हो सकता है, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो. 3 और 4 हो सकता है, इसको इंटरचेंज कर सकते हो. तो 3 इंटू 2 6 वैल्यूज हो गई. ठीक है, यहाँ पर इसके हिसाब से और इसके हिसाब से भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं ना, सिर्फ स्टेटमेंट 2 के हिसाब से. तो स्टेटमेंट 1 ले लें अगर हम कि x डिवाइडेड बाय y इज ऑड. अगर x डिवाइडेड बाय y ऑड नंबर है और हमें ये बताया ही नहीं है, रेंज ही नहीं दी हुई, नेचुरल नंबर हो सकते हैं बस x और y, तो वो कुछ भी हो सकता है ना. देयर आर मेनी वैल्यूज, यहाँ तो इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, राइट. तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से तो नहीं हो रहा है, तो ए पार्ट से जाएंगे कि एक स्टेटमेंट से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65. अगेन क्वेश्चन इज कि हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट. x को मिला है 4/5 ऑफ दैट ऑफ व्हाट y एंड z टुगेदर रिसीव्ड. x को मिला है 4/5 ऑफ व्हाट y एंड z रिसीव्ड. मतलब 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z. ठीक है, सॉरी. स्टेटमेंट 2 इज y received 2/7 of what x and y received. मतलब 7y is equal to 2x plus 2z. We have 3 variables and we have only 2 equations. और ऊपर भी हमें कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है, तो मतलब इन 3 वेरिएबल्स हैं और उसमें से हमें 2 ही इक्वेशंस गिवन है, तो इनसफिशिएंट डेटा है. किसी भी दोनों स्टेटमेंट यूज करके भी हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, डी पार्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे अब हम. अगेन स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन वाला आंसर क्वेश्चन है. देखो एवरेज मार्क्स है क्लास के 60. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. एवरेज मार्क्स 60 हैं, हमें बताना है कि कितने नंबर हैं, कितने बच्चे हैं. द हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 70 है, लोएस्ट मार्क्स 50 है. तो इससे भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे. Exclusive of highest and lowest marks of the class does not change the average. अगर हम 70 और 50 को ऐड करें और उसका उन दोनों का एवरेज निकालें, उन दोनों का एवरेज भी 60 आता है. तो अगर इन दोनों को हटा के बाकी बच्चों की एवरेज निकालें, वो भी 60 आ रही है, तो हो सकता है सबके 60 मार्क्स हो, सारे बच्चों के, इन 2 बच्चों के अलावा बाकी सबके 60 है. तो 60 तो कितनी मर्जी बार आप काउंट कर लो, एवरेज तो उतनी रहेगी. दोनों इक्वेशंस इनसफिशिएंट है इस डेटा को बताने के लिए, इस क्वेश्चन को बताने के लिए. ठीक है, अगेन हमें 3 नंबर बताने हैं कि वो 3 नंबर कौन से हैं. 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो भी प्राइम नंबर है. ठीक है, देयर सम इज लेस देन 23. डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू यूज 2 and then you are going to use 2 other prime numbers, तो वो other prime numbers तो odd होंगे. तो odd plus odd will give you an even number and even plus 2 will give you an even number. और even 2 के अलावा कोई और prime number होता नहीं है. तो जो तीनों prime numbers होंगे, वो तीनों prime numbers जो होंगे वो तीनों के तीनों odd numbers होंगे. ठीक है, सबसे पहली बात. Now what we are going to do is 23 से कम है, तो अगर हम 3, 5, 7 ले लें और इन तीनों को ऐड करें तो इन तीनों का सम बनता है 15, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, 15 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है. एंड वन ऑफ देम इज 5. ये
स्टेटमेंट 2 पे हम बाद में जाएंगे। लेट्स ट्राई कि अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट 1 से कंसिडर कर पाए। 21 से छोटा प्राइम नंबर 19 होता है। लेट्स ट्राई डूइंग इट विद 19। 19 में से अगर हम 5 निकाल दें, बचा कितना? 14। 14 का ऐड कैसे हो सकता है? 7 तो यूज़ नहीं कर सकते फिर 7 + 7 करना पड़ेगा। ठीक है, 3 करेंगे तो 3 और 11 कर सकते हैं। यस, तो 3, 5, 11 विल गिव यू 19। अगर हम स्टेटमेंट 1 ही यूज करें सिर्फ, तो उससे भी ये पॉसिबल है निकालना। 5 रख के भी हम कर सकते हैं, और अगर स्टेटमेंट 2 दे भी रहे हैं तो वो थोड़ा हेल्प कर रहा है बस, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट 1 से भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, और अगर सिर्फ स्टेटमेंट 2 यूज करें तो भी ये चीज़ हो सकती है। नहीं, स्टेटमेंट 2 से नहीं होगा, क्योंकि फिर हम 23 से नीचे का नहीं देखेंगे, हम पूरे प्राइम नंबर्स देख सकते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो वी कैन से कि ओनली वन स्टेटमेंट इज एबल टू सॉल्व इट, अदर दूसरी वाली सिर्फ अकेली नहीं काम कर रही, वो सिर्फ थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है। अब हमें क्वेश्चन बताना है कि क्या x और y का जो सम है वो इंटीजर है। हम कह रहे हैं कि 2x + y जो है वो तो इंटीजर है। लेट्स से कि x की वैल्यू हमने 0.5 ले ली और y हमने ले लिया 3, तो 1 + 3 विल गिविंग यू 4, जो कि इंटीजर होता है। लेकिन x + y होगा 3.5 जो कि इंटीजर नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ये लें तो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, और अगर हम इन दोनों को ले लें तो शायद सॉल्व हो जाए। फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हो जाएंगी, तो बोथ कैन बी यूज्ड। ठीक है, सी पार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 एंड देन वी विल गो विद 70। चलिए, फिर अगेन क्वेश्चन वाला है, स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। द पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q and R for 50 rupees। ठीक है, द प्राइस ऑफ Q is 16, विच इज द लीस्ट। तो P plus R विल गिव यू व्हाट? 34। ठीक है, Q की वैल्यू हमें 16 पता है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू जो है वो R से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब P कम है R से। तो ऐसे तो बहुत सारे कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें P कम हो और R ज़्यादा हो, हम डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P, और हम कह रहे हैं R छोटा है P से, तो इससे भी अकेले से दोनों से सॉल्व नहीं होगा, मिला के भी सॉल्व नहीं होगा, किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं होगा। डी पार्ट आ गया आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 70। P, Q, R एंड S जो है वो एक टेस्ट में अपीयर हुए हैं। P के मार्क्स क्या ज्यादा है Q से? क्या हमें ये बताना है कि क्या P के मार्क्स ज्यादा हैं Q से। P plus Q is equal to the sum of R plus S, ये तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है। हम इससे कुछ नहीं कह सकते कि P के मार्क्स ज़्यादा हैं कि कम है। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। अब इन्होंने बोला P plus S is more than the sum of the marks obtained by Q and R। ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन से भी हम ये नहीं कह सकते कि P के मार्क्स ज़्यादा हैं। हो सकता है S के ज़्यादा हों, इसी के S की वजह से ये ज़्यादा हो रहा हो, और P छोटा हो Q से, फिर भी है ना, पॉसिबल है दोनों चीज़ें। तो सिर्फ इससे पता नहीं चलेगा स्टेटमेंट 1 से, ना स्टेटमेंट 2 से, मतलब अकेले अकेले तो नहीं पता चल रहा है। अगर हम इन दोनों को यूज़ करें इकट्ठे, तो हम कह सकते हैं कि P minus S is equal to Q minus R, या फिर P की वैल्यू ले लो Q minus R plus S। तो यहाँ पे लिख दो, P की जगह पे ये लिख दो, Q minus R plus 2S is greater than Q plus R। That means 2S is greater than 2R, मतलब S की वैल्यू R से बड़ी है, ये तो हम बता पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें चाहिए P और Q, तो लेट्स टेक इट इन दैट वे कि मैं चेंज कर रही हूँ S को R की उसमें। ठीक है, तो S को अगर हम लें तो P plus Q minus R आ रहा है S की जगह पे।
एस की जगह पे लिखना है पी प्लस क्यू माइनस आर, तो ये हो जाएगा 2p प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर. सो दिस विल गिव यू कि p जो है वो r से ज्यादा है. ओके, नाउ वी हैव टू चेंज r. अब एक बार r चेंज करके देखते हैं. r की वैल्यू क्या हो सकती है? p प्लस क्यू माइनस एस. अब इसको यहाँ पे चेंज करके देखो इस वाली इक्वेशन में. p प्लस एस इज ग्रेटर देन q प्लस p प्लस 2q हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारे पास बचेगा कि s इज ग्रेटर देन q. हमें p और q की वैल्यू चाहिए यार. क्या मैं q को चेंज करके देखूं? q को चेंज करके देखते हैं. q को करा r प्लस एस माइनस पी. ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करो r प्लस एस माइनस पी, तो p प्लस एस इज ग्रेटर देन 2r प्लस एस माइनस पी. तो p और r, ये तो मैंने लिख ही दिया था यहाँ पे, p और r बचेगा. s की वैल्यू चेंज करके देख ली. s की वैल्यू चेंज करके नहीं देखी ना, s की वैल्यू करके देखते हैं. तो s विल गिव यू p प्लस क्यू माइनस r इज इक्वल टू s. ये डालो अब यहाँ पे, तो 2p प्लस क्यू माइनस r इज ग्रेटर देन q प्लस r. अगेन p और r में ही वैल्यू आ रही है यहाँ पे. ओ गॉड, तो हमें यही चीज पता चल रही है और इससे भी हम बता नहीं पा रहे कि क्या है. p और s r से बड़ा है और s जो है वो q से बड़ा है, तो हम p और r का फिर भी लिंक नहीं बता पा रहे हैं. तो आई डोंट थिंक किसी भी तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, तो डी पार्ट वी आर गोइंग टू गो विद इट. ठीक है, चलिए अब लास्ट के 10 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से इनको कंप्लीट करते हैं और वीडियो समाप्त करते हैं. चलिए पैसेज पढ़ेंगे. अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोएट्री डज नॉट पॉजिट or expect any belief in absolute truths. These forces or individuals who claims to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical. Truth usually does not emit any contradictions or imperfections. It is Unitarian. It is therefore not of much use of poetry. Poetry abides by the plurality of life and existence. Perhaps poetry follows reality which is plural, anachronistic, full of contradictions. Okay, against the tyranny of truth, poetry remains a partisan of democratic reality. Against the arrogance of power, wealth, and hierarchy, poetry possesses both humility and defiance. Which one of the following statements best reflect the most logical and rational message conveyed by the above passage? It is the poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in humans. Truth is revealed through science or religion, and poetry is anathema of truth. Poetry is romantic, imaginary, and is about feeling, whereas science and religion is about truth. In the world of violence, tyranny, and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. I think this is the most appropriate answer of the passage. Now let's go to passage number 2. The flower was not invented to please us. It flaunted its petals and spreads its perfume to attract an insect. Insect carries the pollen from flower to flower so that the pollen is not carried away by wind and thus not wasted. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there
and we have been conditioned to it. क्या assumptions हैं? The author of the passage believes that flowers are the creation of nature's luxury. The author of the passage does not believe in the usefulness of flowers except as the things of beauty. ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला उन्होंने, और इन नेचर्स की लग्जरी के बारे में भी नहीं बोला है. तो वी आर गोइंग विद द डी पार्ट, नीदर 1 नॉर 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं. एज ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 बट मोर देन 10. पी प्लस क्यू की वैल्यू, एज ऑफ ईच पी कॉमा क्यू है, इन दोनों की एज जो है वो 10 से 100 साल के बीच में है. ठीक है. अगर आप इंटरचेंज कर दो एज ऑफ पी की, द नंबर रिप्रेजेंट, ओके, अगर p की एज 10x प्लस y है तो q की एज 10y प्लस x है. ठीक है. हमें उन दोनों का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस का मतलब है हमें निकालना है 9x माइनस 9y, दैट इज 9 ऑफ x माइनस y. ये निकालना हमने. द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एज ऑफ q. ठीक है. द सम ऑफ देयर एजेस इज 11 by 6 times their difference. इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो वो आ जाएगा 11x प्लस y, जो कि 11 by 6th टाइम है उन दोनों के डिफरेंस का. डिफरेंस क्या है? ये है 9x माइनस y से. ठीक है. 11 से 11 कट हुआ, 6 यहाँ जाएगा. 6x प्लस 6y विल गिव यू 9x माइनस 9y. नाउ यू विल सॉल्व इट. इट विल गिव यू 15y is equal to 3x. x की वैल्यू हो गई 5y. अब ये चीज आपने पुट करनी है अपने पहले वाले इक्वेशन में. ओके. तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y विल बी 5. तो p की वैल्यू या तो 15 और the age of p is greater than that of the age of y. तो p की एज हो सकती है कि p की एज 51 हो और q की एज 15 हो. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि p की एज 2 5 या 10 हो जाता है, फिर डबल हो जाएगा. तो यही एक ऑप्शन बचती है 1 और 5 वाली. ठीक है. तो y क्योंकि 0 से 9 के बीच में ही होगा. So this is the final result. We got the answer and we got the answer by using both the statements. ठीक है. C part. चलिए question number next 74. The main statement of the following 4 statements labeled at P, Q, R and S. Choose the ordered pair of the statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. Okay. मेन स्टेटमेंट कह रही है कि प्रदीप जो है वो या तो डायरेक्टर बन रहा है या फिर प्रोड्यूसर बन रहा है. ओके. तो हम कह रहे हैं कि प्रदीप जो है वो डायरेक्टर है. दो स्टेटमेंट हमें ऐसी लेनी है और दूसरी स्टेटमेंट ले रहे हैं पी और आर. एस और पी लेंगे तो वो एक ही बात कहेगा कि पी प्रदीप जो है वो डायरेक्टर है. तो एस और पी ओनली तो नहीं होना चाहिए. आर और क्यू जो है वो भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. बोथ एस पी एंड आर क्यू, नीदर एस पी नॉर आर क्यू, ये जाएगा. या फिर बोथ ले लो. हम कह रहे हैं कि प्रदीप जो है वो डायरेक्टर है और हम कह रहे हैं प्रदीप जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है. या फिर हम कह रहे हैं कि प्रदीप जो है वो प्रोड्यूसर है या प्रदीप जो है वो डायरेक्टर नहीं है. तो बोथ भी ले सकते हैं. सिंगल एक से तो नहीं बनेगी बात. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 75. इफ ए प्लस बी का मतलब है ये. ओके. ये सॉल्व करना है. 10 प्लस का मतलब होता है माइनस. माइनस को हमने लिखा 30. माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, तो हम प्लस कर देंगे 50. और प्लस का मतलब होता है डिवाइड है. ये डिवाइड का मतलब होता है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस करके 25 कर देंगे. एक सेकेंड. मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? डिवाइड है. मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है. तो ये हो गया 10 माइनस
30 into 100 upon में 50 plus 25. Now this is going to be 260 and this is going to be 35 minus 60 will give you 25 minus का डी पार्ट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे सॉल्व फटाफट से. इफ P मीन्स ग्रेटर दैन, Q मीन्स लेस दैन, R मीन्स नॉट ग्रेटर दैन. अच्छा ठीक है, तो 2x के बाद s लिखा हुआ है. s का मतलब s मीन्स नॉट लेस देन. नॉट लेस देन का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू. ग्रेटर देन इक्वल टू 3y. ठीक है, 3x t का मतलब होता है इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 4z एंड 9y इज p ग्रेटर देन 8z. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर x इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2y और x की वैल्यू जो है वो 4/3z है ना, तो x की जगह पे यहाँ 4/3z रखो. 4/3z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2y. ओके, तो इट मीन्स z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/8y. ठीक है, तो क्या ये चीज यहाँ पे भी आ रही है? 9/8y इज ग्रेटर देन z. पर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और वहां पे हम लोग ले रहे हैं ग्रेटर देन ओनली. तो यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ रही है. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स थोड़ा सा इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वरना मेरे हिसाब से तो सही है. ठीक है, अब x q का क्या मतलब होता है? वो q मीन्स लेस देन. q इज लेस देन 2y, x इज लेस देन 2 है. ठीक है, y r है. r मीन्स इज नॉट ग्रेटर देन. नॉट ग्रेटर देन का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू. ठीक है, z. देन x इज r. r का मतलब अगेन वही r और r दोनों है. r इज z. ठीक है, ये चीज ट्रू कैसे होगी? देखो x जो है वो छोटा है 2y से और ये दोनों चीजें स्टेट है. x is less than 2y and it is less than equal to 2z. ऐसे लिख सकते हैं. तो x is less than 2z हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि x जो है वो z से भी लेस देन इक्वल टू है. तो स्टेटमेंट ओनली वन करेक्ट है, बाकी दूसरी इनकरेक्ट हो जाती है. ठीक है, इन अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24, EFGH इज रिटन एज 1680. ओके, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे हम. 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आ गया. तो IJKL निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना है. 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 करना है. ठीक है, तो 99 इंटू 12 करो 108, 10 कैरी 108, 120, 118, 11880. ठीक है, 77 हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 78. इन अ सर्टेन कोड POT को लिखते हैं अ टॉप, ट्रैप को लिख लें अ पार्ट, अरीना को क्या लिखेंगे? ए और फिर ANERA, नियर. नियर भी नहीं, नीरा है. डी पार्ट. ठीक है, चलो 79. अब इसके एस्टेरिक की जगह पे क्या आना चाहिए? इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 तो नहीं होगा. लेट्स टेक इट डिफरेंस. मल्टीप्लिकेशन की जगह डिफरेंस लेके चलते हैं. यहाँ पे डिफरेंस है 11 का, यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका 25. राइट, फिर अगेन 545.
डिफरेंस से भी नहीं बन रही बात। ओके 14 2 ज़ा 28 प्लस 11 आ रहा है नहीं, इंटू 5 -1 इंटू 3 42 -3 इंटू 2 नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं हो रहा है, डिफरेंस से भी मुझे नहीं आ रहा समझ, कोई स्क्वायर्स का कुछ हो रहा हो। ओके आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट नाउ, मैं इसके एक शॉर्ट्स बना के सॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है, शॉर्ट्स में देख लेना इसका आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। इन सम कोड लेटर्स PQRST represents the number this. It is unknown which letter represents which number. Q और माइनस को Q माइनस S करेंगे तो 2S आएगा, and T is equal to R plus S plus 3, ठीक है। Then what is the value of this? Okay, T जो है वो R प्लस S प्लस 3 है, तो मतलब T जो है वो बड़ा नंबर होना चाहिए। T को अगर हमने 15 ले लिया तो 15 माइनस 3 हो गया 12, तो यहाँ पे 12 कोई सम बन रहा है, किसी दो नंबर्स का सम नहीं बन पा रहा है, तो अगर हम T को ले लें 12 15 की जगह पे, T को अगर हम 12 ले लें तो 12 माइनस 3 विल बी 9, और 9 होता है 4 और 5 का सम, तो R और S जो है वो 4 या 5 में से कुछ होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब Q की क्या वैल्यू बची, 12 भी चला गया, Q या तो 10 हो सकता है या 15 हो सकता है। 15 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो वो 2 × 5 10 दे देगा, है ना। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि Q की वैल्यू जो है वो 15 आ रही है और S की वैल्यू हमने 5 ले ली है, तो R की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, और P क्या बचा, 10 बचा, तो P प्लस R मतलब 10 प्लस 4 14, 14 में से T माइनस करो, 12 माइनस करो, 2 बचेगा। ओके जी, so this was the last question of our today's video. Now I will come up with another class जिसके अंदर हम लास्ट PYQ करने वाले हैं 2025 का biggest and the most important video it is going to be, so you have to be ready for it. We are going to do the CSAT of the PYQ 2025 जो कि लास्ट ईयर ही हुआ है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, इससे आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हो कि CSAT में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी विद इन 1 or 2 days. I will bring it up and I will solve it in front of you guys. तब तक के लिए बने रहिए और तैयारी करते रहिए। I'll see you.